یسوع مسیح کی آمد ثانی ہے۔ مسیح خداوند پھر سے دوبارہ اس دنیا میں ظہور کا ہونے والا ہے، اس زمین پر پھر وہ بادشاہی کو قائم کرنے والے۔ یہ ہماری اس کنونشن کا مضمون ہے، اور کنونشن کی جو مرکزی آیت ہے یوحنا عارف مکاشفہ کے 22ویں باب کی 12ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس، ریوارڈ، مزدوری جو اس نے محنت کی، جو اس نے مشقت کی، کاموں کے موافق۔ کام اچھے تھے برے تھے، فیصلہ خدا کے ہاتھ میں، لیکن کرائسٹ نے یہ بات فرمائی کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ آئیے اس آیت کو میرے پیچھے سب بولے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آنکھیں بند کیجئے، مہربانی سے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور میرے پیچھے دعا کیجئے باواز بلند۔ خدائے قدوس، بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں، ہمارے کانوں کو مسح فرما، ہم سے ہم کلام ہو، ہمارے دلوں کو زمینیں بنا، اچھی زمینیں بنا، عمدہ زمینیں بنا، نرم زمینیں بنا، زرخیز زمینیں بنا، تاکہ تیرے کلام کا بیج بویا جائے جو 30 60 100 گنا پھل لائے۔ اپنے خادم کی مدد کر، ہم سے ہم کلام ہو، عمل کرنے کی توفیق دے، قبول کرنے کی توفیق دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ تشریف رکھیے۔ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد وہ چرنی میں جب مجسم ہو کر آیا، اور اس کا تجسم روح القدس کی قدرت کے وسیلے ہوا، اور ہماری بائبل کی جو پہلی نبوت ہے وہ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت ہے۔ سینکڑوں ہزاروں نبوتیں ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، لیکن پہلی آمد کے حوالے سے کمپیریٹیولی یا جب تقابلی جائزہ لیا جائے تو یسوع کی جو پہلی آمد ہے اس کے مقابلے میں دوسری آمد کے حوالے سے 8 حوالے دیے گئے ہیں۔ جہاں پہلی آمد ہے 1 حوالہ ہوگا، پر اس کے مقابلے میں دوسری آمد کے 8 حوالے دیے گئے ہیں۔ 1845 حوالہ جات ہیں یا ریفرنسز ہیں جو یسوع مسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ 1845 نئے عہد نامہ میں 260 ابواب ہیں، اور 260 ابواب میں 318 نبوتیں کی گئی ہیں یسوع مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے۔ دنیا کا سب سے بڑا مضمون اس وقت آپ کے اخبارات، آپ کا میڈیاز، آپ کے چینلز، آپ کی بکس، آپ کی ریسرچ، آپ کی اسٹڈی، آپ کا فلسفہ، آپ کا منطق، آپ کا لاجک، آپ کی سائنس، یہ ساری چیزیں اس مضمون سے چھوٹی رہ جاتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دوسری بار پھر آنے والا ہے اس زمین پر اور بادشاہی کرنے والا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب لکھنے والا یوحنا رسول ہے، جس کی ماں کا نام سلومی تھا اور اس کے باپ کا نام زبدی تھا، اور یہ زبدی، یہ یوحنا اس کا بیٹا تھا، اور یعقوب، یہ دونوں بھائی تھے، یعقوب رسول اور یوحنا رسول۔ یعقوب رسول کو ہیرودیس انتپاس کے دور میں شہید کر دیا گیا تھا، لیکن یوحنا کو زمین پر زندہ رہنے دیا، اور یہ واحد شخص ہے، یہ پہلا رسول ہے جو طبعی موت مرا تھا، یعنی 100 سال کے قریب، 90 سال سے زیادہ اور 100 سال کے قریب اس کی عمر تھی، اور یوں وہ آسمان پر اٹھایا گیا
लेकिन वो शहीद नहीं हुआ। बाकी तमाम रसूलों को शहीद कर दिया गया था। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की दूसरी आमद दुनिया का सबसे जोरदार, दिलकश, रंगीन, खूबसूरत और पुरकशिश, पुरजलाल, पुरवकार मजमून है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। बहुत से लोगों ने ठट्ठेबाजी की है, मजाक उड़ाए हैं क्रिश्चियनिटी के, मसीहत के, कि इतनी देर से ये बातें हम सुनते चले आ रहे हैं, बड़ा शोर है मचा सारी दुनिया में, यीशु जल्द आ रहा है। यीशु अभी तक नहीं आया, क्या हुआ? वो कहां चला गया? क्या वो आएगा या नहीं? क्या उसकी आमद होगी या नहीं? बाज लोग ये समझते हैं कि उसकी आमद तो होगी, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा नहीं होगी, अगर होगी हमें उसकी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड इट, हमें चंदा उसकी जरूरत नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि जब यीशु पैदा हुआ, मुजस्सम हुआ, उसकी पहली आमद हुई, तो वो एक बच्चा बनकर आया था, कामिल इंसान बनकर आया था, ताकि वो सलीब पर कफारा दे, अपनी जान कुर्बान करे, फिदिया दे, और उम्मतों और कौमों के गुनाहों के बदले अपनी जान कुर्बान करके, खून बहाकर इंसानों के लिए जिंदगी के, मुक्ति के, निजात के, जलाल के, नूर के, बरकतों के, मौजों के दरवाजे खोले। यह उसकी पहली आमद। अब जब यीशु मसीह आएगा तो वो मुकद्दसा मरियम के बतन में नहीं आएगा, वो किसी चन्नी में नहीं आएगा। अब वो जलाल के साथ, बड़ी तजल्ली के साथ, बड़ी कुदरत के साथ, बादलों पर फरिश्तों के साथ, लाखों लाख मुकद्दसों के साथ उसका ज़हूर होगा, वो आश्कार होगा, वो नमूदार होगा। और यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से बहुत से निशानात बताए गए हैं बाइबल मुकद्दस में। आखिरी जमाने में जब यीशु जल्द आने वाला है, तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में, मत्ती की इंजील में, मरकस और लूका और यूहन्ना, इन चारों अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद भरपूर अंदाज में बयान की गई है। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से बयान करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि दुनिया की जो बाइबल मुकद्दस जो किताब है मसीहों की, जो सारी दुनिया की किताब है, इसका पहला लफ्ज हमारी उर्दू बाइबल में खुदा है, एलोहीम। मुकाशवा की किताब का पहला लफ्ज यीशु, पहले बाब की पहली आयत का पहला लफ्ज यीशु है, और मुकाशवा की किताब की आखिरी बाब के आखिरी आयतें यीशु है। इस किताब का आगाज भी यीशु से है, मुकाशवा की किताब का। यूहन्ना आरिफ ने जो मुकाशवा की किताब लिखी, उसका आगाज भी यीशु है, और उसका अंजाम भी यीशु है, और उसके अंदर मुखालिफ मसीह का जिक्र है, यीशु की दूसरी आमद का जिक्र है, कलीसिया का जिक्र है, मोरों का जिक्र है, 7 मोहरें, 7 कलीसियाएं, 7 सितारे, 7 नरसिंगे, 7 प्याले, 7 रूहें, 7 का जिक्र है। और फिर बाज लोगों ने इस बात का दावा किया, हमें मुकाशवा की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, ये इंसान पर उल्टी असर करती है, बरक्स असर करती है, बुरा असर करती है। कुछ लोगों ने इसके सिंह दावे किए, जो विरत करने वाले हैं, जो कब्रों में बैठकर मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं और विरत करते हैं, वो उल्टी हरकतें करते हैं, उन पर बुरा असर होता है, क्योंकि कब्रिस्तान में कौन बाइबलें पढ़ता है, और रात को जहां इब्लीसी नापाक कुफ्तें भी उनका पीछा करती है। बाइबल मुकद्दस ने यूहन्ना आरिफ की किताब के 12वां शगाफ अल्फाज में बाबाज बुलंद शोर मचाते हुए ये कहा, मुबारक है वो शख्स जो इस किताब को पढ़ता है, मुबारक है वो शख्स जो इस किताब को सुनता है, मुबारक है वो शख्स जो इस किताब पर अमल करता है। इस किताब को पढ़ना, अमल करना, सुनना इंतहाई जरूरी है। मुबारक है वो लोग, लेकिन अफसोस उन पर जिन्होंने बाइबल को बंद कर दिया, बाइबल को ठुकरा दिया, सलीब को ठुकरा दिया,
चरनी को ठुकरा दिया, कलवरी को ठुकरा दिया, उन पर अफसोस। लेकिन मुबारक है वो उम्मतें, वो कौमें, वो नस्लें, वो मज़ाहिब, वो अदियान, वो मसालक, वो लोग मुबारक है जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, इसको सुनते हैं। वो लोग मुबारक हैं। और मुबारक है वो जो मुकाशा की किताब को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की आमद किसी कोने में नहीं होगी, नेवर। वो चुप चुपा के नहीं आएगा। बाइबल में क्या पढ़ा? जो विरद आपने पादरी यूसुफ नवाब साहब से सुना, उस तलावत में लिखा है कि हर एक आंख उसको देखेगी, हर एक आंख उसको देखेगी। जकरिया नबी के सहीफे में उसके बारे में बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जिन्होंने उसको छेदा वो भी उसको देखेगी। लिखा है, दुनिया के उम्मतों के तमाम कबीले छाती पीटेंगे जब यीशु बादलों पे आएगा और हर एक आंख उसको देखेगी। यीशु किसी कोने में, किसी कमरे में, किसी हैकल में, किसी गिरजे में, किसी मस्कन में नहीं आएगा। सारी दुनिया यीशु को आते देखेगी। हालेलुया। उसकी आमद ऐसी होगी जैसे पूर्व से पश्चिम बिजली गूंज जाती है। सूरज तारीक हो जाएगा, चांद सुर्ख हो जाएगा, जमीन रुक जाएगी, समुंदर उनकी लहरें खामोश हो जाएगी और सारी दुनिया में भूचाल, जलजले, जंगे, उम्मतें एक दूसरे के साथ जंग करेंगी और यीशु मसीह अचानक आ जाएगा। उसकी आमद अचानक होगी और सबके सामने होगी। और यीशु की आमद के दो हिस्से हैं, एक नादीदनी है और एक दीदनी है। नादीदनी उस हवाले से कि कलीसिया जब उठाई जाएगी तो कलीसिया बादलों पर यीशु मसीह का इस्तकबाल खुद करेगी। पहला थस्सलुनीकियों के नाम का खत है, उसका 4 बाब, उसकी 15वीं, 16, 17, 18 इन आयात में लिखा है कि जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे। मुर्दा लोगों के लिए बाइबल वाहिद उम्मीद है, उम्मीद जहान बाइबल मुकद्दस है। बाइबल बताती है जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे जब आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा। सारी उम्मतें, सारी कौमें जिनमें से जो मसीह को कबूल कर गए और मसीह की खातिर या मर गए या शहीद हुए, वो मुए नहीं, वो फिर जिंदा होंगे। जलाली बदन के साथ, नूरानी बदन के साथ, लाफानी बदन के साथ, गैर फानी बदन के साथ वो जी उठेंगे। कब्रें खुल जाएंगी, चट्टानें तिड़क जाएंगी। यीशु मसीह की आमद जब होगी, मुर्दे जी उठेंगे। ये पहली क़यामत है। मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। इसलिए मैं सारी उम्मतों को, अगर जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, मैं बताना चाहता हूं, मसीहों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, अफ्रीकनों को, अमेरिकनों को, यूरोप के लोगों को, एशिया के लोगों को, सारे ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ये एलानिया कहना चाहता हूं कि जो कोई मसीह में मर गए वो जी उठेंगे। खाली कब्रों में से निकल आएंगे, उनकी कब्रें खाली होंगी और वो जलाल में, और जो जिंदा होंगे वो भी बदल जाएंगे और वो सारे आसमान की तरफ उठाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा पैगाम है, बड़ी वार्निंग भी है। और यीशु मसीह बहुत जल्द आता है। खुदावंद यीशु मसीह की जो दीदनी आमद होगी, उसका जो सेकंड फेज ऑफ हिज सेकंड कमिंग, उसकी दूसरी आमद का दूसरा फेज वो ये होगा कि सारे लोग उसको देखेंगे और वो जैतून के पहाड़ पे उतरेगा। जैतून का पहाड़ यरूशलेम में है। और जब कलीसिया ऊपर उठाई जाएगी, कलीसिया 7 साल तक, दानियल नबी का सीफा उसके
9वें बाब के मुताबिक बड़ी मुसीबत होगी जमीन पर। मुखालिफ मसीह बहुत दुख देगा, दुख जुल्म और सितम ढाएगा, लेकिन कलीसिया रैप्चर हो चुकी होगी, आसमान पर जा चुकी होगी। ये मेरा ईमान है, अकीदा है, मेरी रिसर्च है, मेरी तलाश है और मेरी तहकीक है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। लेकिन एक शख्स जमीन पर जब कलीसिया ऊपर होगी, मुखालिफ मसीह एंटी क्राइस्ट, वो उस वक्त जमीन पर बादशाही करेगा। मुखालिफ मसीह के बारे बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स है, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स, लेकिन मैं चंद का जिक्र करूंगा कि इस मुखालिफ मसीह का नाम क्या होगा। उसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। नंबर 1, उसको शरीर कहा गया है, ज़बूर नंबर 10 उसकी 2 से 4। नंबर 2, उसको शाह असूर का एक टाइटल दिया गया है, यशायाह 10वां बाब उसकी 12वीं आयत, यशायाह 10वां बाब उसकी 5 से 12। फिर उसको छोटा सिंह कहा गया, दानियल 7वां बाब उसकी 8वीं आयत। फिर उसको तुरशरू कहा गया, दानियल 8वां बाब उसकी 23 आयत। फिर उसको जालिम बादशाह का नाम दिया गया, दानियल 9वां बाब उसकी 26वीं। फिर उसको पाजी शख्स कहा गया मुखालिफ मसीह को, दानियल 11वां बाब 21वीं आयत। फिर उसको अपनी मर्जी करने वाला शख्स करार दिया गया, दानियल 11वां बाब 36वें आयत। उजाड़ने वाली मकरूहात चीज रखने वाला शख्स, यही है मुखालिफ मसीह, मत्ती 24वां बाब उसकी 15 आयत, दानियल 9 बाब उसकी 27 आयत। उजाड़ने वाली मकरूहात, ये चीज क्या है? मुखालिफ मसीह 7 साल का अहद बांधेगा, अमन का मुआहदा करेगा इस्राएल के साथ, जिसको हम पीस ट्रीटी कहते हैं। दानियल 9वें बाब के मुताबिक 7 साल का मुआहदा करेगा और डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करेगा और कहेगा 7 साल हम अमन में रहेंगे, लेकिन वो झूठ बोलेगा। मुखालिफ मसीह झूठ बोलेगा, मकारी की चाल चलेगा। वो एक सियासी आदमी होगा, मजहबी और दीनी आदमी होगा और बड़ा चालाक और शातिर तबीयत का तेज तराज शख्स और इवल जीनियस होगा, इवल जीनियस होगा, ये एंटी क्राइस्ट। और ये 7 साल के मुआहदे को दरमियान में आकर तोड़ देगा, 3.5 साल के बाद इस मुआहदे को तोड़ेगा और हैकल को जो यरूशलेम में है उसको जाकर नापाक कर देगा और सुबर की कुर्बानी देगा और सुबर के को ज़बह करके फसीलों पर, यरूशलेम की फसीलों पर, हैकल की फसीलों पर रख देगा। और ये उजाड़ने वाली मकरूहात जिसका जिक्र दानियल नबी ने और मत्ती रसूल की इंजील में खुद क्राइस्ट ने किया था, अल मसीहा ने, उजाड़ने वाली चीज। मत्ती 24वां बाब उसकी 15वीं आयत और दानियल 9 बाब उसकी 27वें। उसको झूठा मसीह कहा गया, मत्ती 24वां बाब उसकी 23 आयत। गुनाह का शख्स नाम दिया गया, 2 थिस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 30 आयत। हलाकत का फर्जंद ये उसको कहा गया, 2 थिस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 30 आयत। उसको बेदीन कहा गया, 2 थिस्सलुनीकियों का खत 2 बाब उसकी 8 है। उसको अथाह गढ़े का फरिश्ता ये नाम दिया गया मुखालिफ मसीह को, मुकाशफा 9 बाब उसकी 11वीं है। और गौर करेंगे, उसको हैवान कहा गया जो समुंदर में से निकलता है, मुकाशफा 13वां बाब उसकी पहली 10 आयत। दोस्तों ये मुखालिफ मसीह है। अब मुखालिफ मसीह का किरदार क्या होगा, इस पर गौर करेंगे। नंबर 1, वो उत्तम दर्जे का ज़हीन शख्स होगा, इवल जीनियस, मुकाशफा 13वां बाब 18वीं आयत, दानियल 7वां बाब उसकी आयत है। यही मुखालिफ मसीह बोलने की बुलंद काबिलियत और साहिब तकरीर होगा, तकरीर करने में बहुत आला होगा, ग्रेट ओरेटर ये नाम उसको दिया गया मुखालिफ मसीह को। ग्रेट स्पीकिंग एबिलिटी उसके अंदर होगी, दानियल 7 बाब उसकी 8 आयत और मुकाशफा 13वां बाब उसकी 5 आयत। फिर वो मकाराना, शातराना, सियासी बसीरत रखेगा, दानियल 9 बाब उसकी 27 आयत, मुकाशफा 17 बाब 12 से 13, मुकाशफा 17 बाब 17 आयत। फिर जिस्मानी ताकतवर और शक्लो शबी खूबसूरत
शक्ल और शबी का होगा। दानियल 7:20 आए। फौजी मिलिट्री काबिलियत उसके अंदर होगी। फोर्सेस को कंट्रोल करना और लड़ाना, जंगी महारत रखना, ये उसका वतीरा होगा। मुकाशफा 13वां बाब उसकी 4 आयत, मुकाशफा 13वां बाब उसकी 14 आयत, मुकाशफा 19वां बाब 19वें आयत। अखलाकी तौर पर नहायत गिरा हुआ जलील तरीन शख्स होगा, घिनौना शख्स होगा, बद अखलाकियात का अलंबरदार होगा। दानियल 11वां बाब 38वें आयत, मुकाशफा 13वां बाब 6 आयत, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब 8वें आयत। खुद परस्त, गौर कीजिए, खुद परस्त और शख्सी मरकजियत का खां अपनी पूजा करवाने का ख्वाहिशमंद होगा कि मुझे बड़ा करके पेश किया जाए, मुझे बड़े बड़े नाम दिए जाए, बड़े बड़े टाइटल दिए जाए, मेरा बड़ा जिक्र किया जाए। वो बहुत ऊंची शान मांगेगा, जलाल मांगेगा, इज्जत मांगेगा, और क्या कर इशारे करके लोगों को बड़ी बड़ी महफिलों में कहेगा मेरा नाम ऊंचा रखे, मुझे सबसे ऊपर रखे। ये खुद परस्त शख्स होगा। दानियल 11वां बाब 36वीं 37वीं आयत, फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 4 आयत। वो तारीख को बदलने की कोशिश करेगा। गौर कीजिए, he will try to change the history of the world। वो दुनिया की हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करेगा। दानियल 7वां बाब 25वें आयत। वो अपने आप को खुदा का नेमुल बदल बनाएगा, ऐलान करेगा मैं इलाह हूं, मैं खुदा हूं, मेरी पूजा करो, मुझे खुदा कहो। वो हैकल में जाकर ऐलान करेगा मैं खुदा हूं। सुनेगा उससे। दानियल 11वां बाब 36वें, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब 4 है। वो यहूदियों में से होगा। दानियल 11वां बाब 36वीं 37वीं वहां लिखा है कि वो अपने बाप दादा के मबूदों के खिलाफ काम करेगा। ये आयात और ये हवालाजात, ये कुतब बताती है हमें कि मुखालिफ मसीह कैसा होगा। लेकिन दोस्तों, हम मुखालिफ मसीह की मुरादी के ज्यादा कायल नहीं है, लेकिन टीचिंग देना, तालीम देना बहुत जरूरी है कि ये कैसा शख्स होगा, उसका नाम क्या है, उसके किरदार क्या होगा, उसका रख रखाव कैसा होगा, उसका चाल चलन कैसा। पर मैं आपकी खिदमत में ये बयान करना चाहता हूं, बाइबल एक ऐसी किताब है जो डिप्रेशन, खौफ, बेईमानी, शकूक, इन चीजों को खत्म कर देती है और इंसान के अंदर जिंदगी का दीप जलाती है, उम्मीद की किरणें इंसान के अंदर उजागर करती है। बाइबल एक ऐसी किताब है। और यीशु मसीह की पहली आमद की बाबत लिखा है कि जो अंधेरे में पड़े थे उन पर रोशनी चमकी, जो मौत की वादियों में थे उन्हें जिंदगी का मुजदा सुनाएगा। अब जो सेकंड कमी की बात हम करते हैं दूसरी आमद में, तो ये याद रखिए, ईमानदार रास्तबाज खुदावंद यीशु को जिन्होंने कबूल कर रखा है, जो यीशु के लहू से धुल चुके हैं, जिनके जामे बेदाग हैं, बेऐब हैं और धुले हुए हैं और सफेद हैं, वो जलाल में शामिल होंगे। हालेलुया। वो यीशु मसीह के जलाल में शामिल कर दिए जाएंगे।